کریں گے۔ آغاز میں آپ کو اپڈیٹ کریں، پاکستان میں کورونا وبا کے وار نہ تھم سکے، مہلک وائرس کا شکار مزید 43 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ملک میں کورونا کے 4000 سے زائد نئے مریض سامنے آ گئے، فعال کیسز کی تعداد 61,000 سے بھی بڑھ گئی۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ رواں ماہ بھی وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا میں مبتلا مزید 43 افراد زندگی سے محروم ہو گئے اور 4,323 کیسز بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 61,450 تک جا پہنچی ہے۔ مہلک وائرس اب تک 14,821 جانیں نگل چکا ہے، جبکہ 3,587 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.9% ریکارڈ کی گئی ہے۔ اسلام آباد، لاہور، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ملتان، پشاور اور سوات سمیت مختلف شہروں میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ NCOC کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 2,902 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس کے بعد وبا سے شفا یاب ہونے والوں کی مجموعی تعداد 6,15,960 ہو گئی ہے۔ NCOC نے کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے SOPs پر سختی سے عمل کرنے کی اپیل کی ہے۔ ملک کے مختلف شہروں میں وینٹیلیٹر اور آکسیجن پر زیر علاج کرونا مریضوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ NCOC سینٹر کے مطابق ملتان میں کورونا کے لیے مفت 70% سے زائد وینٹیلیٹر مصروف ہیں۔ لاہور میں 67، گجرانوالہ میں 60 اور اسلام آباد میں 57.7% وینٹیلیٹرز پر مزید زیر علاج ہیں۔ گجرانوالہ میں 50% آکسیجن بیڈز بھی بھر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ گجرات میں 78%، پشاور میں 75% اور سوات میں 64% سے زائد آکسیجن بیڈز مصروف ہیں۔ کرینہ کپور ہے۔ وزیر تعلیم سندھ سعید غنی کہتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں کورونا کیسز کی شرح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صوبائی ٹرانسپورٹ، ٹرین اور ہوائی سفر پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ سندھ بارڈر پر لوگوں کی اسکریننگ کرنا مشکل ہے۔ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ سندھ آتے اور جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایک سال میں بچوں کی تعلیم کا بہت نقصان ہوا۔ اسکول سے متعلق مزید فیصلے صورتحال کے مطابق کریں گے۔ کئی دنوں سے جو شرح چل رہی تھی خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد میں، اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے انٹرپرونشل، اس کو بند کیا جائے، جو ٹرینز ہیں اس کو بند کیا جائے، جو فلائٹس ہیں اس کو بند کیا جائے۔ تو یہ آپ کے بھی علم میں ہے کہ روزانہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ باقی صوبوں سے صوبہ سندھ میں آتے ہیں اور یہاں سے جاتے ہیں۔ تعلیم کا نقصان بہت ہوا ہے پچھلے ایک برس میں جب سے یہ کووڈ آیا ہے، لیکن یہ نقصان نہ تو حکومت سندھ چاہتی ہے کہ ہو، نہ ہی والدین چاہتے ہیں کہ یہ ہو، نہ ہی میں کہتا ہوں کہ وفاقی حکومت چاہتی ہے کہ یہ ہو، نہ ہی کوئی والد پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ بچوں کا یہ نقصان ہو۔ جتنے بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ بحالت مجبوری کیے جا رہے ہیں۔ معاون خصوصی پنجاب فردوس عاشق اوان کہتی ہیں حکومت پنجاب شہریوں کے لیے 1.5 ارب روپے کی ویکسین خریدے گی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے ویکسینیشن کے مزید سینٹرز بھی کھولے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب ویکسینیشن سینٹر کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب جو ہے وہ 1.5 ارب کی ویکسین خود سے صوبہ پنجاب کے بجٹ سے خریدنے جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں پنجاب بھر میں ہم نے 127 سینٹر جو ہیں ان کو آپریشنل کیا ہوا ہے۔ ان ویکسینیشن سینٹر کے اندر ہمارا جو ٹارگٹ ہے کہ جو سینئر سٹیزنز ہیں وہ جب ویکسینیشن کے لیے آئیں تو ان کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ترجمان بلوچستان حکومت لیاقت شہوانی کہتے ہیں کہ صوبے میں کورونا کیسز میں 4 گنا اضافہ ہوا۔ تعلیمی اداروں میں صورتحال زیادہ مخدوش نہیں۔ بچوں کے آنے والے سال کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ صرف ایک مہینے میں
बलूचिस्तान में जो केसेस हैं उसमें 4 गुना इजाफा हुआ है। बल्कि मैं कहूँगा कि मार्च में जो केसेस हैं उसके तनासुब से आप अगर अप्रैल देखें 5 दिन, उसमें मुसलसल जो 6% है तनासुब पॉजिटिविटी का, वो कॉन्स्टेंटली जारी है और आगे बढ़ रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा और केसेस कम नहीं हो रहे हैं। लाहौर के लारी अड्डों पर अक्सर मुसाफिर कोरोना एसओपीज की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। एनसीओसी हफ्ते में 2 दिन के लिए बैनुल-सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा चुकी है। मज़ीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वहीद गुज्जर से। वहीद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें शहर में शहरियों की बेहतियाती की वजह से कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा जो है वो जारी है। और उसके बाद हमने देखा कि हुकूमत की जानिब से सख्त फैसले भी है, जिसमें हमने देखा कि इंटर बस सर्विस जो है उसको बंद किया गया, जिसमें मेट्रो बस, मेट्रो ट्रेन, स्पीडो बस जो है वो बंद है ताहाल। और उसके बाद जब केसेस में मुसलसल इजाफा हो गया तो NCOC की जानिब से एक बयानिया जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि जो बैनुल सूबाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक जो है हफ्ता और इतवार को बंद रहेगी। मगर उसके बावजूद हमने देखा कि शहरियों की जानिब से अभी भी काफ़ी हद तक जो है वो बेहतियातियाँ जो देखने को मिल रही हैं। मगर फेस मास्क के वाले से शहरी काफ़ी ज़्यादा एहतियात कर रहे हैं, फेस मास्क का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर समाजी फासलों के वाले से ज़्यादा एहतियात जो है वो नहीं की जा रही। यही वजह है कि कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है और अमवात भी जो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। मगर शहरियों की जानिब से अभी भी लापरवाहियों का सिलसिला जो है शहर के मुख्तलिफ मकामात पर जारी है। मगर डॉक्टर्स और तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि जितना जो SOPs बनाए गए हैं, जितना इस पर अमल दरामद किया जाएगा, उतना ही ज़्यादा जो है इस वबा से बचा जा सकता है। अब फेस मास्क के वाले से पुलिस की जानिब से जो है वो कार्रवाइयाँ भी सामने आ रही हैं, लोगों के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज हो रहे हैं। मगर इस सख्ती के बाद जो हमने देखा कि काफ़ी हद तक जो है फेस मास्क का इस्तेमाल जो शुरू हो चुका है, मगर समाजी फासले और दीगर जो SOPs हैं उसको अभी भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। यही वजह है कि इजाफा जो है केसेस में होता चला जा रहा है। मगर हुकूमत की जानिब से बारहा ये कहा जा रहा है कि जितना SOPs का ख्याल रखा जाएगा उतना ही कोरोना से बचा जा सकता है। जी, पेशावर में ट्रांसपोर्टर्स ने 2 दिन ट्रांसपोर्ट की बंदिश को मुस्तरद कर दिया। ट्रांसपोर्टर्स कहते हैं 2 दिन ट्रांसपोर्ट बंद करना उनके लिए मुमकिन नहीं है। ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज करते हुए GT रोड को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया। GT रोड पर ट्रैफिक की बंदिश से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। हजारों मुसाफिरों को ट्रांसपोर्टर्स के एहतजाज में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा। एहतजाज करने वाले ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि हुकूमत ट्रांसपोर्ट बंद करके उनके मुँह से निवाला छीन रही है। मुजाहिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनको रिलीफ दिया जाए। उधर KPK में मेडिकल के तमाम तलबा को 3 हफ्तों में कोरोना वैक्सीनेशन लगाई जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के बाद तालीमी सरगर्मियां शुरू की जाएंगी। हायर एजुकेशन ने तमाम मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस को मुरासला अरसाल कर दिया है। सेक्रेटरी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की हिदायत पर वैक्सीन लगाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से एक और डॉक्टर शहीद हो गया। डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद तौफीक सर्विसेज अस्पताल पेशावर में जेर इलाज थे। डॉक्टर मोहम्मद तौफीक का ताल्लुक जिला चारसदा गांव मिर्जा दयार से था। सूबे में कोरोना वायरस से मजमूई तौर पर 51 डॉक्टर शहीद हो चुके हैं। और अभी आपको बताएं कि कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सिरीन एयरलाइन की परवाज़ फनी खराबी के बायस वापस कराची एयरपोर्ट उतार ली गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जावेद, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये कराची से इस्लामाबाद जाने वाली सिरीन एयर की परवाज़ नंबर 502 थी, जो कि जब 12:50 पर इस्लामाबाद से रवाना हुई। जब परवाज़ रहीना खान के ऊपर पहुंची तो तैयारे के कप्तान को पैनल बोर्ड पे इंडिकेशन मिली कि उनके जहाज में बनी खराबी, जिसकी बिना पर जहाज को प्रोसीजर के तहत कराची एयरपोर्ट उतार दिया गया है। और इस हवाले से CEO सरीन एयर सफदर साहब का ये कहना है कि जहाज मुसाफिरों को लॉन्च में मुंतकिल कर दिया गया है। जहाज की फनी खराबी दूर करने की कोशिश की जा रही है, वरना बुधवार तैयारे से जहाज जो पैसेंजर जो जहाज उनको रवाना कर देंगे। यहाँ ये अमल भी बताना जरूरी है कि जहाज में मौजूद है। जहाज ठीक में परवाज़ों की फनी खराबी को चेक किया जा रहा है। हमें अपडेट कर रहे थे नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया।
ऐवान बाला में सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। इलेक्शन के दौरान खुफिया कैमरों का मामला जेर बहस आया। चेयरमैन सेनेट ने फॉरेंसिक तहकीकात की यकीन दहानी करा दी है। आजम नज़ीर तारड़ के अपोजिशन लीडर के खिलाफ रिमार्क्स पर शोर शराबा हुआ। इजलास का अहवाल जानते हैं वक़ार अली सैयद की इस रिपोर्ट में। सेनेट का इजलास चेयरमैन सादिक संजरानी की जेर सदारत हुआ, जिसमें इलेक्शन के दौरान खुफिया कैमरों का मामला जेर बहस आया। आजम नज़ीर तारड़ और वजीर रेलवे आजम सवाती ने ऐवान में खुफिया कैमरे लगाने के मामले की तहकीकात का मुतालबा किया। चेयरमैन सेनेट ने कहा कि ऐवान में खुफिया कैमरों की फॉरेंसिक तहकीकात कराएंगे। तो हम ये मुतालबा करते हैं कि 12 मार्च वाले जो खुफिया कैमरे नस्ब किए गए थे, वोट की सिक्रेसी को डिस्क्लोज करने के लिए उसके बारे में ये हाउस एक इन्वेस्टिगेटिव कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाए और इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जरूर बनाएंगे इंशाल्लाह और फोरेंसिक उसकी कराएंगे, लेबोरेटरी से चेक। आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि अपोजिशन के 27 सेनेटर्स आज़ाद अपोजिशन हैं, अलग नशिस्तें दी जाएं। हम आज़ाद अपोजिशन के तौर पर तामीरी सियासत को जारी रखेंगे। आजम नज़ीर तारड़ के अपोजिशन लीडर के खिलाफ रिमार्क्स पर शोर शराबा हुआ। तशरीफ रखें जी, तशरीफ रखें साहबान, आपको बाद में मौका देंगे जी। सेनेटर रजा रब्बानी ने दस्तूर तरमीमी बिल 2021 ऐवान में पेश कर दिया। कहा कि कौमी असम्बली के मुकाबले में सेनेट के इख्तियारात कम हैं, ऐवानों के इख्तियारात बराबर होने चाहिए। जनाब चेयरमैन के एक फेडरेशन के अंदर सेनेट के और लोअर हाउस के इख्तियारात जो हैं वो इक्वल होने चाहिए। हुकूमत ने रजा रब्बानी की तरमीम पर एतराज उठाया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने बिल मुताल्लिका कमेटी के सुपुर्द कर दिया। प्रोडक्शन टीम के साथ वक़ार अली सैयद, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीडीएम में खलीज मजीद वसी हो गए। पीडीएम ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। सेनेट इजलास से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अलहदा इजलास हुए। मुस्लिम लीग नून की जेर सदारत इजलास में JUI समेत दीगर जमातों के सेनेटर्स ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जेर सदारत इजलास में PP के हिमायती सेनेटर्स भी शरीक हुए। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पारा हो गया। ऐवान बाला के इजलास से कबल हिज़्ब इख्तिलाफ के 2 अलहदा इजलास हुए। आज़ाद अपोजिशन का इजलास पार्लियामेंट हाउस में मुस्लिम लीग नून के सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ की सदारत में हुआ, जिसमें नून लीग के अलावा JUI, PKMAP, नेशनल पार्टी और BNP मेंगल के सेनेटर्स भी शरीक थे। इजलास में सेनेट इजलास की हिकमत अमली पर मुशावरत की गई। दूसरी जानिब पार्लियामेंट हाउस के अपोजिशन चैम्बर में यूसुफ रजा गिलानी की जेर सदारत भी इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायती जमातों के सेनेटर्स ने शिरकत की। कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने शो कॉज नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, अभी तक PDM ने हमें शो कॉज नोटिस दिए हैं जिसका हमने जवाब नहीं दिया। फिलहाल हम PDM का हिस्सा हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दावों के बरक्स सियासी मैदान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नजर आती है। PDM की जमातों में यकसोई और यकजहती का फुकदान सियासी हलकों में मौजूए बहस है। सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर PDM में खलीज मजीद वसी हो गई है। PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए बाप के सेनेटर्स की हिमायत लेने पर एतराज उठाया गया। मतन में लिखा गया है कि पीपल्स पार्टी और ANP के इक़दाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा। दोनों जमातों से 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया। चले थे हुकूमत को गिराने मगर आ गए आमने सामने। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट नामी हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पारा हो गया। ऐवान बाला में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की नशिस्त के लिए PDM वाले आपस में इख्तिलाफ का शिकार हो गए। PDM ने पीपल्स पार्टी और ANP को इजहार वजह का नोटिस थमा दिया। पीपल्स पार्टी का नोटिस चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और ANP का नोटिस सरबरा असफंद यार वली खान के नाम पर रवाना किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी ने शो कॉज नोटिस मिलने की तस्दीक कर दी। शाहिद खाकान अब्बासी ने भी PDM का मौक़िफ़ हम ठोक कर बयान किया। बेंच से लोग लेकर आपने अपोजिशन लीडर की कुर्सी हासिल की है, ये PDM के
जो मंशूर है, जो बयानी है उसके खिलाफ। मेरा फैसला नहीं है, PDM का फैसला होगा। मेरा काम तो शो कॉज जारी करना, जो सदर साहब का हुक्म था। जब जवाब आएगा उसको PDM कंसिडर करेंगे। नोटिस में अपोजिशन लीडर के लिए बाप के सेनेटरों की हिमायत देने पर एतराज उठाया गया। जराये के मुताबिक दोनों जमातों से PDM के उसूलों के खिलाफ वर्जी पर जवाब तलब किया गया। मतन में लिखा गया है कि पीपल्स पार्टी और ANP के इकदाम से अपोजिशन इत्तेहाद और तहरीक को नुकसान पहुंचा। ऐसा इकदाम क्यों किया? दोनों जमातें वजूहात से आगाह करें। नोटिस में दोनों जमातों को जवाब देने के लिए 7 रोज की मोहलत दी गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इंशाल्लाह अवाम इस हुकूमत को वाइड एबनिशो कर देंगे। ये बुज़दार की हुकूमत जो है, जो इमरान खान साहब चलाते हैं, हफ्ते और इतवार वाले दिन लाहौर जाके, इसके ये हालात हैं। मुल्क के हालात आप देख लें, वफाकी हुकूमत के हालात देख लें, पंजाब में आप देख लें, और जो इनकी हमदर्दी जनूबी पंजाब के लोगों से है, जो इनकी नीयत है जनूबी पंजाब के बारे में, आज वो पूरे पाकिस्तान के सामने आ गई है कि सिर्फ झूठ बोलने पर, अवाम को धोखा देने पर, अवाम की मुश्किल में इजाफा करने पर और तरह तरह के ढोंग रचाने के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं है। तो हम जनूबी पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। हम आज भी कहते हैं कि अगर आप मुखलिस हैं जनूबी पंजाब से, तो कौमी असम्बली में बिल ले आए, पंजाब असम्बली में बिल ले आए। ये रेजोल्यूशन पंजाब असम्बली का मौजूद है कि जनूबी पंजाब और भावलपुर ये 2 सूबे बनने हैं। इसके लिए आईनी तरमीम चाहिए, ये बिल ले आए। इस तरह के तमाशे करने से न मुल्क चल सकता है, न जनूबी पंजाब के अवाम के मामलात हल हो सकते हैं। ये भी एक हकीकत है कि जितना काम शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ने जनूबी पंजाब में किया, उसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं है। एक एक रुपया गिन लें। अगर ये बुज़दार साहब की हुकूमत अपने 3 साल में उसका 10वां हिस्सा भी कर सकी है, तो फिर हम कहेंगे बड़ी कामयाबी हासिल की है। ये आज इस मुल्क के हालात हैं, आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी था कि ये तमाशे जो हैं मुल्क में, तमाशों में मुल्क नहीं चलता। मैं बार बार कहता हूँ, ये सर्कस नहीं है। ये 23 करोड़ का मुल्क है, ये 13 करोड़ का सूबा है, उसके साथ आज ये मामलात इस हुकूमत के हैं। तो हम इस काम की मज़म्मत करते हैं और इंशाअल्लाह जनूबी पंजाब के अवाम के साथ खड़े हैं। उनकी जो ज़रूरत है, जो उनकी राय है सूबे के बारे में, और सिर्फ जनूबी पंजाब में नहीं, हज़ारा में भी सूबे की डिमांड है। पाकिस्तान में जहाँ भी सूबे की डिमांड है, ये मामलात कौमी असम्बली में, सेनेट में, सूबाई असम्बलियों में डिबेट होकर ये मामलात हल होते हैं। हमने इसकी मिसाल आपको दी है कि फाटा का मामला था, हुकूमत के जाने में 6 हफ्ते बाकी थे, लेकिन हमने तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम सियासी पार्टियों से मुशावरत करके वो काम भी आपको करके दिखाया। तो आज क्या मुश्किल है कि 3 साल गुजरने के बाद भी न जनूबी पंजाब का सूबा बन सका है, न भावलपुर का सूबा बन सका है, न हज़ारे की बात हो सकी है, न किसी और जगह जहाँ पर अवाम की डिमांड है। सूबे मुल्कों में बनते रहते हैं। इस बात पर डिबेट कर लेंगे, हो सकता है पाकिस्तान के मसाइल का हल इसी बात में हो कि हमें जहाँ भी अवाम की डिमांड है, मुकामी तौर पर उनके मसाइल हल करने के लिए सूबे बनाने की ज़रूरत पड़ जाए। ये मामलात उस वक़्त होते हैं, इनका हल उस वक़्त निकलता है जब एक हुकूमत अवाम के मैंडेट से आई हो, चोरी शुदा इलेक्शन से ना आई हो, जिसको अवाम के दुख और दर्द का पता हो, जो अवाम की तकलीफ जानती हो। जो मुसल्लत की हुई हुकूमतें होती हैं, वो मुल्क को दर्द के अलावा कुछ नहीं देती। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। जी अपोजिशन में तकसीम नहीं है। अपोजिशन के उन मेंबरान से तकसीम है जो हुकूमती बेंचेस से आए हैं। उनको वापस हुकूमती बेंचेस पे जाना चाहिए।
یہ دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ہے کہ حکومتی بینچز سے اراکین اٹھ کے اپوزیشن بینچز پر بیٹھے ہوں اور اپوزیشن لیڈر ان کی مرضی سے بنا ہو. تو یہ جو فرینڈلی اپوزیشن ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے، حقیقی اپوزیشن چاہیے، اور وہ انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں ملے گی. نہیں، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی اجلاس جو ہے وہ فضل الرحمان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ شبخون مارنے کی جو کوششیں ہیں یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. یہ لوگوں کی خواہشات بہت ساری ہیں، لیکن سیاست جو ہوتی ہے وہ اعتماد پہ ہوتی ہے. اتحاد اعتماد پہ چلتے ہیں. اس اعتماد کو اگر توڑا جائے گا تو پھر جواب دہ آپ کو ہونا پڑے گا. کتنا چھوٹا ہے گا؟ پارٹی کی پنجاب میں نشستیں نہیں ہیں، نہ عدم اعتماد وہ لا سکتی ہے. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نون لیگ کو شہباز کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے، جس پہ وہ نہیں مان رہی. حمزہ شہباز صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب اسمبلی. وزیر اعلیٰ کون بنائیں گے؟ پیپلز پارٹی کے ایریا پانچ صوابی انٹرچینج پر جج آفتاب آفریدی کو اہلیہ اور بچوں سمیت قتل کرنے والے ملزمان کی تلاش میں پولیس جوائنٹ آپریشن ٹیم نے پشاور اور خیبر میں کارروائیاں کرتے ہوئے 5 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے. FIR میں شامل 2 گاڑیاں بھی برآمد کر لی گئی ہیں. ملزمان کی شناخت مقتول جج کے بیٹے ماجد آفریدی کریں گے. وزیر اعظم عمران خان سے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ملاقات کی. وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو اسلام آباد میں امن و امان کی صورتحال پر بریفنگ دی اور انسداد دہشت گردی کے جج آفتاب آفریدی کے قتل کی ابتدائی تحقیقات سے بھی آگاہ کیا. وزیر اعظم نے وزیر داخلہ کو ہدایت دی کہ انسداد دہشت گردی کے جج اور ان کے اہل خانہ کے قتل کی تحقیقات جلد از جلد مکمل کی جائیں اور امن و امان کی صورتحال کو بھی بہتر بنایا جائے. صوابی کے وکلاء برادری نے شہید جج کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کر دیا ہے. صدر صوابی بار ایسوسی ایشن ملک دانیال خان نے کہا ہے کہ شہید جج صوابی میں کسٹڈی جج رہ چکے ہیں. صوابی کے وکلاء غمزدہ خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں. انہوں نے حکومت سے شہید جج کے قتل کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. کی خدمات تا حیات یاد رہیں گے. اور یہاں ہم آج ابھی ہم نے میٹنگ کی ہے، اس کی شہادت پہ ہم بہت سوگوار ہے. یہاں کا تمام فضا بہت سوگوار ہے اور ہماری متعلقہ حکام سے یہ مطالبہ ہے کہ ان کی بےایمانہ قتل اور ان کی فیملی کی ان کی ایک غیر جانبدار شفاف تفتیش کی جائے. صوابی میں ATC کے جج آفتاب آفریدی کے قتل کے خلاف سکھر میں وکلاء کی ہڑتال جاری ہے. واقعے کے خلاف وکلاء نے تمام عدالتی کارروائیوں کا بائیکاٹ کر دیا. ہڑتال ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی کال پر کی گئی. ہائی کورٹ کی وجہ سے وکلاء عدالتوں میں پیش نہیں ہوئے ہیں. سپریم کورٹ بار نے انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اور اہل خانہ کے قتل کے الزام میں صدر سپریم کورٹ بار لطیف آفریدی اور ان کے بیٹے کا نام FIR سے حذف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. سپریم کورٹ بار نے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ قتل کی واردات کے وقت لطیف آفریدی اور ان کے صاحبزادے اہل خانہ کے ساتھ زرعی فارم پر موجود تھے. اطلاع ملتے ہی لطیف آفریدی نے قتل کی مذمت کی. تاہم صدر سپریم کورٹ بار نے قتل کی تفتیش میں ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے. بار کونسل نے بھی اپنے اعلامیے میں واقعے کی شدید مذمت کی. کراچی میں جمشید روڈ پر رواں برس کی سب سے بڑی ڈکیتی کی واردات. مسلح ملزمان بلڈر کے رائڈر سے 3 کروڑ مالیت کے بانڈز لوٹ کر فرار ہو گئے. جی نیوز نے واردات کی 2 CCTV فوٹیجز بھی حاصل کر لی. فوٹیج میں رائڈر کے پیچھے ملزمان کو جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے. اسی پر بات کرتے ہیں برہان مصطفیٰ سے. برہان مصطفیٰ، کیا ڈیٹیل ہے؟ کیا فوٹیجز سے کوئی مدد ملی ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو؟ بالکل، آج صبح 11:30 بجے کے قریب جمشید روڈ کے قریب ایک بڑی ڈکیتی کی واردات سامنے آئی ہے، جس میں مسلح ملزمان بلڈر کے رائڈر سے 3 کروڑ روپے مالیت کے بانڈ لے کر فرار ہوئے ہیں. ہماری بلڈر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جب وہ 3 روز قبل جو ہے یہ پیمنٹ ان کے پاس آئی تھی، آج صبح جو ہے رائڈر بینک جانے کے لیے روانہ ہوا. اس کے پیچھے جو ہے وہ 3 موٹر سائیکلوں پہ 6 ملزمانوں نے اس کی ریکی کی اور مین روڈ پہ اس کو روک کے اس سے جو ہے وہ پرائز بانڈ لے کے فرار ہو گئے. جبکہ اس کے بعد پولیس اور قانون نافذ کرنے
करने वाले इदारे भी जाए वक्फा पर पहुंचे और पुलिस से हमारी बात हुई तो पुलिस का ये कहना था कि जो राइडर है जिसका नाम आसिफ है उसको शामिल तफ्तीश कर लिया गया है और मुल्जिमानों की सीसीटीवी फुटेजेस में राइडर के पीछे मुल्जिमान को जाते बासानी देखा जा सकता है। बुरहान मुस्तफा अपडेट करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ, देखते रहिए GTV न्यूज़।